ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਚਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਬਰਡਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਜਾਹਿਰਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਤਕ ਝੁਕੇਗਾ ਔਰ ਘੁਟਨੇ ਟਿਕਣਗੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਈਵਿਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਗਿਆਨ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਯੈਸ। ਔਰ ਵੰਦਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮ 4 ਵਰਸ 1 to 8। ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੀਂ। ਹੇ ਆਦਮੀਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਰਸ 3 ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਰਸ 5, ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਵਰਸ 6,
बहुत लोग पुछते हैं सानू परमेश्वर की चंगाई कौन विखावेगा। हे यहोवा अपने मुखड़े नूं साडे उत्ते चमका। चमकाओ। वर्स 7 यहोवा तू मैनू बहुत खुश कीता है। मैं हुण उन्हां दिनां नालों वधेरे खुश हाँ जदों असीं वाढी करते हाँ। ਉਹ दिन जदों असीं जशन मनाउंदे हाँ, क्योंकि उन्हां दिनां विच साडे कोल वधेरे अनाज ते वधेरे दाख रस हुंदा है। वर्स 8 मैं शांति नाल सौंदा हाँ, क्योंकि हे यहोवा तू मैनू सुरक्षित रखदा है जदों मैं नींदर विच हुंदा हाँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी दे वचन सुनन वाले ते पढ़न वाले असीं सारे वडभागे हाँ, ब्लैस्ड हैगे हाँ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ प्रभु जी दे वचन सुनते ने ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ प्रभु जी दे वचन बोलदियां ने ते उन्हां ते विश्वास करदियां। हालेलुया। आओ मिलके भजन गाइए। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा। आओ मिलके गाइए। आओ अपनी अपनी जगह पे खड़े होइए, अखा बंद करिए, सिर झुकाइए, हाथ आकाश वाल करिए और जिसमें प्रभु जी ने क्या रूह ते सच्चाई च भर के उन्हां दी हमदो सना की। हालेलुया। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। तुसी लोगों में भी इज्जत करोगे ख्वार कदती कर। तुसी लोगों में भी इज्जत करोगे ख्वार कदती कर। रखोगे झूठ नू प्यारा चलोगे झूठ डेरा पर। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां। यकीन जानो यहोवा ने है चुनिया दीनदारां। जदों उसनू मैं पुकारांगा सुनेगा ओ पुकारा। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। न जाना पाप मेरे पड़ोस को कम दे रहना। न जाना पाप देने पड़ोस को कम दे रहना। ते अपने बिस्तरे उत्ते दिलों विच सोच चुप रहना। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई दे रब्बा। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख रहोगा। चढ़ाओ सच दी कुर्बानी भरोसा रख रहोगा। बतेरे
कैद सानू मोड़ चंगी शैली खावेगा जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई मेरा रब्बा यहोवा अपने चेहरे का फसा दे उसपे चादर कर यहोवा अपने चेहरे का फसा दे उसपे चादर कर मैं खुश हाँ होना तो मद के जो खुश है अपनी दौलत पर जदों तू पुकारा मैं तू सुन सच्चाई मेरा रब्बा मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन रहम भी फरमा दुआ सुन रहम भी फरमा दुआ सुन रहम भी फरमा ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ I bless you in the name of the Lord. प्रभु यीशु के नाम में आपको बरकत देता हूं। जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल की पहली किताब की पहले चैप्टर की कुछ वर्सेस पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की साजना कैसे की थी। 6 दिन में उन्होंने इस सृष्टि की साजना कर दी थी। पहले दिन उन्होंने दिन और रात बनाए, दूसरे दिन उन्होंने अर्थ और स्काई बनाए यानी धरती और आकाश बनाए, तीसरे दिन प्लांट और ट्रीज बनाए, चौथे दिन सन और मून बनाए ताकि धरती पर रोशनी हो, दिन के लिए सन और रात के लिए मून बनाए। फिर 5वें दिन उन्होंने बर्ड्स और एनिमल बनाए। 5 दिन में उन्होंने ये सारी कायनात बनाई। अभी तक मानव जाति धरती पे नहीं आई थी। 6ठे दिन फिर उन्होंने मानव जाति को बनाया, मानव को बनाया, इंसान को बनाया। पहले 5वें दिन जो भी उन्होंने चीजें बनाई उसमें उन्होंने अपनी कल्पना का सहारा लिया, लेकिन जब 6ठे दिन इंसान को बनाया, he created man in his own image, अपने प्रतिबिंब में उन्होंने इंसान को बनाया और इंसान को बना के ब्लेस किया और उनको एक बात बोली। क्या बात बोली? यह है बुक ऑफ जेनेसिस, जो पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक है, बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 1 और पद 28। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हों, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियों आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। So my brothers and sisters, if you look into this verse, हमें लगता है कि परमेश्वर का प्लान क्या था कि जो इंसान की जातियां पूरी धरती पे फैल जाएं, डिस्पर्स हो जाएं, my brothers and sisters, और हर चीज पे राज्य करें, हर चीज को रूल करें। ये डिस्पर्सल इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि एक राज्य का या एक किंग का या एक नेशन इस धरती पे ना हो, अलग अलग नेशंस हो, अलग अलग लोग हो, अलग अलग लैंग्वेजेस हो, क्योंकि वो चाहते थे कि सबके ऊपर किंग, सुप्रीम किंग एक ही है, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, वो परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने इस तरह का हुक्म दिया था कि खूब नेशंस बने, खूब राष्ट्र बने, खूब जातियां हों, खूब जनजातियां हों, खूब भाषाएं हों। लेकिन साथ में वो ये भी चाहते थे कि अलग अलग भाषा होके, अलग अलग नेशन होके,
उनके अंदर यूनिटी हो, वो इकट्ठे होकर रहें, क्योंकि वो चाहते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में भी एकता हो, ये चाहते थे। बुक ऑफ करंथियन, 1 करंथियन चैप्टर 14 वर्स 33, पहला करंथियन अध्याय 14 पद 33, फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस एज इन ऑल चर्चेस ऑफ द सेंट्स। परमेश्वर अव्यवस्था के शासक नहीं है, ऑथर नहीं है, वो शांति देते हैं, जैसा कि संतों की सभी कलीसिया में होता है। यही रीजन है कि संत पौलुस ने, अपोस्टल पॉल ने हमें एक शिक्षा दी थी, ये भी बुक ऑफ करंथियन में दी गई है। 1 करंथियन चैप्टर 1 वर्स 10, पहला करंथियन अध्याय 1 पद 10, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम में मतभेद ना हो, तुम सब एक साथ जुटे रहो और तुम्हारा चिंतन और लक्ष्य एक ही हो, ये सेम माइंड हो, सेम जजमेंट हो, चिंतन भी एक हो, लक्ष्य भी एक हो। वो चाहते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्यों चाहते थे हमारे परमेश्वर हमें ऐसा हुक्म क्यों दिया था? हम सब जानते हैं, यूनिटी में ही, एकता में ही सामर्थ्य है, यूनिटी में ही पावर है। जब इकट्ठे होके चलते हैं, इकट्ठे होके काम करते हैं, तो वो काम कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते। अगर मेरी पावर 10 है, आपकी पावर 20 है, मिलके 30 बनती है, लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो 30 से भी कहीं ज्यादा पावर का काम हम कर सकते हैं। इसीलिए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन्होंने हमें यही कहा था कि हम लोग इकट्ठे होके चलें, इकट्ठे होके यूनिटी में अपने भेदों को, मतभेदों को दूर करते हुए इकट्ठे होकर प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कलीसिया के लिए काम करें। क्यों? इसका भी उन्होंने जवाब दिया। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26, लेवियों की व्यवस्था अध्याय 26 पद 7 और 8। पद 7 में लिखा है, तुम अपने शत्रुओं को पीछा करके भगाओगे और उन्हें हराओगे, तुम उन्हें अपनी तलवार से मार डालोगे। 8वां पद, तुम्हारे 5 व्यक्ति 100 व्यक्तियों को पीछा करके भगाएंगे और तुम्हारे 100 व्यक्ति 1000 व्यक्तियों का पीछा करेंगे, तुम अपने शत्रुओं को हराओगे, उन्होंने तलवार से मार डालोगे। ऐसी एकता में शक्ति है। There is a power in walking as one। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन आज की कलीसिया अलग अलग डिनोमिनेशंस में है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बटी हुई है, हम अलग अलग हैं, हमें वो एकता नहीं है जो होनी चाहिए। क्या ही अच्छा हमें एकता हो, क्योंकि हमारे प्रभु एक हैं, हमारे वचन एक है, पवित्र बाइबल एक है। क्या ही अच्छा हो कि हम छोटे छोटे भेद मिटा के कि बपतिस्मा ऐसे लेना चाहिए या वैसे लेना चाहिए, या वर्शिप ऐसे करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए, इनको मिटा के इकट्ठे हो जाए। माय ब्रदर सिस्टर, जब हम इकट्ठे होकर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो अंतिम प्रार्थना की थी, जब इस धरती से जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ प्रभु से मांगा था। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ यूहन्ना, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना की इंजील अध्याय 17 पद 20 और 23 में। माई प्रेयर इज नॉट फॉर देम अलोन, कह रहे हैं वो जो मेरे 12 शागिर्द इस समय हैं, मेरी प्रार्थना सिर्फ उनके लिए नहीं है, जो आने वाले हैं, आप और मैं, उनके लिए भी। क्या उन्होंने बोला? किंतु मैं केवल उनके लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, यानी कि 12 डिसाइपल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए जो इनके उपदेशों द्वारा मुझ में विश्वास करेंगे। पद 21 में कहते हैं, वे सब एक हों, वैसे ही जैसे परम पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वे भी हम में से एक हों, ताकि जगत विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। संसार इसीलिए प्रभु के पीछे चलने में कतराता है, क्योंकि हम लोग अभी एक नहीं हैं। अगर हम एक हो जाएं, जैसे परमेश्वर और प्रभु यीशु एक थे, तो संसार प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देगा। ये प्रभु की शिक्षा थी, ये परमेश्वर की शिक्षा थी। लेकिन हैरानी की बात है, अगर वचन में जाके देखें तो एक कहानी पढ़ने को मिलती है, एक दृष्टांत हमें देखने को मिलता है, जिसमें परमेश्वर ने मानव जाति को कंफ्यूज कर दिया। बजाय उनमें एकता लाने के लिए
उनमें डिफरेंसेस डाल दिए। जब उन्होंने एक मीनार बनाने की कोशिश की, उस मीनार को टावर ऑफ बेबल के नाम से जानते हैं, बेबल की मीनार के नाम से जानते हैं। तो आज का जो प्रभु का संदेश है उसका शीर्षक है टावर ऑफ बेबल, व्हाई गॉड कंफ्यूज्ड मैनकाइंड। टावर ऑफ बेबल, व्हाई गॉड कंफ्यूज्ड मैनकाइंड। बेबल की मीनार, परमेश्वर ने मानव जाति को क्यों भ्रमित कर दिया, क्यों कंफ्यूज कर दिया। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 में, उत्पत्ति अध्याय 11 में। हुआ क्या था कि जब नोआ के समय परमेश्वर ने 40 दिन बारिश की, दिन और रात, सब कुछ तहस नहस हो गया, धरती जितने भी लोग थे खत्म हो गए, मानव जाति खत्म हो गई, सिर्फ नोआ और नोआ के जो खानदान था वो बच गए। इस तरह परमेश्वर दोबारा मानव जाति शुरू की नोआ के द्वारा। लेकिन जब ये लोग बढ़ने शुरू हुए, मानव जाति संख्या में बढ़नी शुरू हुई, तो वो जाके एक जगह में ठहर गए और वहां उन्होंने एक मीनार बनाने की कोशिश की। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 1 से शुरू करते हैं, उत्पत्ति अध्याय 11 पद 1 से। नाउ द होल वर्ल्ड हैड वन लैंग्वेज एंड ए कॉमन स्पीच। पूरा संसार एक ही भाषा बोलता था और उनका एक ही शब्द समूह था जो वो प्रयोग करते थे। Verse 2, as people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. जब वो पूरब की तरफ बढ़ना शुरू हुए, फैलना शुरू हुए, तो शिनार देश के एक मैदान उनको मिला और वहां जाके वो ठहर गए, वहां जाके वो रुक गए। थर्ड वर्स, फिर उन्होंने एक बात की, क्या बोले? लोगों ने कहा हम लोगों को ईंटें बनानी चाहिए और उन्हें आग में तपाना चाहिए ताकि वे कठोर हो जाएं। इसलिए लोगों ने अपने घर बनाने के लिए पत्थरों के स्थान पर ईंटों का प्रयोग किया और लोगों ने गारे के स्थान पर राल का प्रयोग किया। और उन्होंने फिर आके एक सलाह की। वर्स 4 में इसका जिक्र आता है, कम लेट अस बिल्ड आवरसेल्व्स ए सिटी। आओ अपने लिए एक नगर बनाएं, विद ए टावर दैट रीचेस टू द हेवंस। हालेलुया। इतना बड़ा बुर्ज बनाएं, इतनी बड़ी मीनार बनाएं जो स्वर्ग तक जाती है, आकाश को टच कर दिए। सो दैट वी मेक नेम फॉर आवरसेल्व्स, ताकि हमारे लिए अपना एक नाम बना सकें, हम प्रसिद्ध हो सकें। अदरवाइज वी विल बी स्कैटर्ड ओवर द फेस ऑफ द होल अर्थ, ताकि हम फैल न जाएं पूरे संसार में, पूरे धरती पे। जब परमेश्वर ने ये बात सुनी, इकट्ठे होते, एकता थी, मिलके काम करने की कोशिश कर रहे थे। परमेश्वर को तो खुश होना चाहिए, लेकिन जब परमेश्वर ने ये सुना तो उनकी क्या रिएक्शन हुई? But the Lord came down to see the city and the tower and that what people were building. तो परमेश्वर नीचे आए देखने के लिए उस इमारत को, उस मीनार को, बुर्ज को जो परमेश्वर के बच्चे बना रहे थे। And the Lord said, और परमेश्वर ने क्या कहा? ये सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं और मैं देखता हूं कि वे इस काम को करने के लिए एकजुट हैं। यह चाहे तो जो कुछ कर सकते हैं, ये तो सिर्फ आरंभ है। शीघ्र ही वे सब कुछ करने के योग्य हो जाएंगे जो ये करना चाहते हैं। तो ये सोच के परमेश्वर ने क्या बोला? वर्स 7, इसलिए जाओ, बोलते हैं आओ हम नीचे चले और उनकी भाषा को गड़बड़ कर दें, तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। Let us come down and confuse their language so that they do not understand each other. So the Lord scattered them from there over to all the earth. So परमेश्वर ने उस जगह से उन सबको पूरे अर्थ में, पूरी धरती में तितर बितर कर दिया। And they stopped building the city. और उन्होंने वो जो मीनार बनाने की कोशिश की थी वो रोक दी। That is why it is called Babel. इसीलिए इस जगह को बेबल के नाम से जानते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, बेबल का अगर आप डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है ए कंफ्यूज्ड नॉइस मेड बाय ए नंबर ऑफ वॉइसेस। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उस समय जो शोर होता है, कोई समझ नहीं आती को क्या बोल रहा है, उसको बेबल कहते हैं। और ब्रदर सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर तो यूनिटी चाहते थे, वो चाहते थे एकजुट हों, वो कंफ्यूजन के खुदा नहीं है। फिर उन्होंने कंफ्यूज क्यों किया इन लोगों को? ध्यान से देखें, इसी वचन में लिखा है, इसी में राज छुपा हुआ है। They wanted to make this
so that they will not be scattered. परमेश्वर का हुक्म था कि वो तितर बितर हो जाए, पूरी धरती पर मेहमानों को बनाने का मकसद यही था कि अलग अलग नेशंस हो, अलग अलग लैंग्वेज हो, लेकिन वो चाहते थे हमारा नाम हो, हमारा नाम ऊंचा हो और हम लोग धरती पर तितर बितर ना हो जाए, इसी जगह पे रहे। माय ब्रदर सिस्टर्स, मैं सोचता हूँ 3 कारण है इस कहानी को अगर ध्यान से पढ़ें तो। पहला कारण तो यह है कि दे ट्राई टू वेज ए वॉर अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर जो चाहते थे उसका उल्ट वो करना चाहते थे। परमेश्वर से वो आजादी चाहते थे, परमेश्वर के खिलाफ लड़ाई चाहते थे। परमेश्वर ने हुक्म दिया था धरती पर राज्य करो, पर वो चाहते थे धरती के साथ हम आकाश में भी, स्वर्ग में भी राज कर रहे हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते थे, परमेश्वर की कमांड के अगेंस्ट था। सेकंड रीजन क्या था? They wanted to create this मीनार, this tower as a monument. वो एक स्मारक की तरह इस मीनार को बनाना चाहते हैं। स्मारक किन के लिए? उन इंसानों के लिए जो उसमें, जो यहोवा के जमाने में थे, जब प्रभु ने बाढ़ लाई, पानी बरसाया, 40 दिन बाढ़ आगे सारे मर गए थे। वो जो लोग थे उनकी याद में वो एक स्मारक बनाना चाहते थे, इतना ऊंचा जो स्वर्ग तक जाए। माय ब्रदर सिस्टर, वो इंसान जो मारे गए, जो प्रभु ने बाढ़ डाल के भेज के मार दिए, वो कौन थे? वो गंदे लोग थे, बुरे लोग थे। प्रभु उनको देख के शर्मित हुए थे कि मैंने ये क्या बना दिया, कैसा इंसान बना दिया। परमेश्वर की नजर में वो ऐसे लोग थे जिनकी सजा मौत थी, लेकिन ये लोग मिलके उनके लिए एक स्मारक बनाना चाहते थे। ये भी परमेश्वर को पसंद नहीं था। और तीसरी बात, वो ये जो मीनार इतनी ऊंची बनाना चाहते थे कि वो स्वर्ग तक चली जाए। वो चाहते थे आकाश को वो सपोर्ट करे, ऐसी ये मीनार बन जाए। किस लिए? ताकि कल को अगर परमेश्वर ऊपर से दोबारा बारिश भेज के हमारी मानव जाति को खत्म करने की कोशिश करें तो वो सक्सेसफुल ना हो। यानी कि परमेश्वर की जो विल थी उसको वो रोकना चाहते थे। माय ब्रदर सिस्टर, वी कैन नॉट कंट्रोल गॉड, वी कैन नॉट आउटस्मार्ट गॉड। परमेश्वर हमारे किंग हैं, हमारे लॉर्ड हैं, जो चाहते हैं वही होगा। हम चाहे जितना मर्जी छटपटाएं, जो मर्जी कोशिश करें, वो नहीं हो सकता। We cannot live a life independent of God. We have to be dependent on God. My brothers and sisters, आज संसार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग ऐसी मीनारें बना रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कोई अपना पैसा इतना इकट्ठा कर रहा है, पैसे के अंबार ढेर इतने लगा रहा है कि पैसे की इतनी बड़ी मीनार बन जाए कि मुझे किसी की जरूरत ना हो, ना परमेश्वर की, ना भाई की, ना बहन की, ना माँ की, ना बाप की। पैसा मेरा खुदा है, पैसे से मैं अपनी सारी जिंदगी बिताऊं। कुछ लोग अपने आप को रुतबे में बड़ा कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन के अपने आप को ऐसा समझते हैं इतने बड़े हो गए कि बाकी सब हमसे छोटे हैं। वो उसकी टावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो भी हम मीनार बनाने की कोशिश में है, ये हमारे किसी काम के नहीं। जिस दिन परमेश्वर की मर्जी हुई, ये तहस नहस हो जाएगा और हम भी उनकी तरह तितर बितर हो जाएंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें ये मीनार बनाने की बजाय हमें वो मीनार बनानी चाहिए जो परमेश्वर हमें हिदायत देते हैं। अपने चरित्र की मीनार, अपने चरित्र का बुरुज। हमारा चित्र ऐसा हो कि हम दूसरों में अलग नजर आए। जैसे मीनार दूर से खड़ी नजर आती है, बिल्डिंग चाहे कितनी ऊंची भी हो, ऊंची मीनार दूर से नजर आती है, ऐसा हमारा चरित्र, हमारी बोल चाल, हमारा उठना बैठना ऐसा हो कि हम दूसरों में खड़े नजर आए। माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु चाहते हैं कि हम यूनिटी में होके एक काम करें, एक ही होके सब कुछ करें, लेकिन ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि वो प्राइड होता है। और परमेश्वर जो घमंडी हैं उनका साथ कभी नहीं देते, उनसे नाराज होते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, इसीलिए उन्होंने इन लोगों को कंफ्यूज कर दिया, उनको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तब्दील कर दिया और उनको तितर बितर कर दिया। My brother and sister, the motive in their heart was wrong. वो यूनाइटेड तो थे, इकट्ठे तो थे, लेकिन दिल के अंदर जो उनका मोटिव था वो गलत था और परमेश्वर इसको नहीं चाहते थे। मीनार उन्होंने बनाई थी, अगर मीनार बनाते इतनी ऊंची कि परमेश्वर के पास आके परमेश्वर से रूबरू देख सकें, बात कर सकें, तो बात और थी। हम में से कौन सा ऐसा इंसान नहीं है जो परमेश्वर के समीप जाना चाहता है, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है, परमेश्वर को रूबरू देखना चाहता है। अगर ऐसी बात होती तो बात अलग थी, लेकिन वो
ऐसी मीनार बनाना चाहते जिससे उनका नाम हो, उसकी प्रसिद्धि हो। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा नो, अगर आज मैंने इसको नहीं रोका, इनको नहीं रोका, तो ये क्या कर देंगे। जब हम बात को सही मौके पे नहीं रखते तो बात का बतंगड़ बन जाता है। यही परमेश्वर ने किया, उनको रोक दिया। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी है, जो कंफ्यूजन परमेश्वर ने उस दिन शुरू किया था, उन्होंने 2000 साल पहले वो कंफ्यूजन खत्म कर दिया। He reversed this confusion. My brothers and sisters, जो टावर ऑफ बैबल बनाने के लिए मानव जाति ने गलती की थी, परमेश्वर ने बहुत सारी भाषाएं बना दी, बहुत सारे राष्ट्र बना दिए, तो उन्हीं भाषाओं से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आज देखिए संसार में कितनी जन है, कितनी जातियां हैं, कितनी जनजातियां हैं, कितनी बोलियां हैं, कितनी डायलेक्ट्स हैं। वी आर ऑल डिवाइडेड बाय नेशंस, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। लेकिन परमेश्वर ने एक काम किया। इस कहानी का दूसरा पार्ट 2000 साल पहले संपूर्ण हुआ, जब इस धरती पे पवित्र आत्मा आए। माय ब्रदर एंड सिस्टर, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों को बोला था कि वेट करना, आपको मैं एक सहायक भेजूंगा। परमेश्वर एक सहायक भेजेंगे और वो आपको सामर्थ देगा। और पेंटाकोस्ट वाले दिन ऐसा ही हुआ था। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 में। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से पढ़ते हैं। जब पेंटाकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक ही स्थान पर इकट्ठे थे। प्रभु के जो चेले थे, डिसाइपल्स थे, वो एक जगह पे इकट्ठे थे। तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वो बैठे थे उसमें वो भर गया, और आग की फैलती लपटें जैसी जीभें वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आकर आ टिकी। इस जगह को हम आज अपर रूम के नाम से जानते हैं, और मैं और मोना बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस जगह के दर्शन करके आ चुके हैं, जब कुछ साल पहले हम इजराइल गए थे। वर्स 4, ऑल ऑफ देम वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड बिगैन टू स्पीक इन अदर लैंग्वेजेस एज द स्पिरिट अनेबल्ड देम। वो सभी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गए और अन्य भाषाएं बोलने लग पड़े, जो पवित्र आत्मा ने उनको बोलने के लिए कहा। When they heard this noise, जब आसपास जो लोग थे उस समय यरूशलेम में आकाश के नीचे सभी देशों के यहूदी इकट्ठे हुए थे पेंटाकोस्ट का दिन मनाने के लिए। जब उन्होंने ये बात सुनी तो देखिए क्या हुआ। वर्स नंबर 6, जब यह शब्द गरजा तो एक भीड़ एकत्र हो गई। वे लोग अचरज में पड़े थे, क्योंकि हर किसी ने उन्हें अपनी भाषा में बोलते सुना। हालेलुया। अलग अलग मुल्क से यहूदी आए थे, उनकी अलग अलग भाषा थी, पर जब ये बोले तो पवित्र आत्मा की जो आवाज थी, सबको ऐसा लगा वो मेरी आवाज में, मेरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। और उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनको लगा कि ये तो गलीली, वो कहते हैं वे आश्चर्य से भरकर विस्मय के साथ बोले, ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं हैं? फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी भाषा में बोलते हुए कैसे सुन रहा है। हालेलुया। वो जो भाषाएं अलग हुई थी, प्रभु ने पवित्र आत्मा की आवाज से वो सारी इकट्ठी कर दी। माय ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड enabled all of us to praise him in one language. My brothers and sisters, सबने वो मैसेज सुना जो वो संदेश देना चाहते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी अपनी भाषा में सुना। So the confusion that started on the day जब बाइबल की दीवार, उन्होंने मीनार बनाने की कोशिश की, that were reversed on Pentecost day. My brothers and sisters, आज संसार बहुत सारे ग्रुपों में बटा हुआ है, बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी धर्म हैं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा राष्ट्र बना रहा है जिसमें हर भाषा, हर लैंग्वेज, हर जुबान बोलने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। वो एक ही राष्ट्र है, उनकी एक ही भाषा है। इसका जिक्र आता है बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 7 वर्स 9, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और वर्स नंबर 9। इसके बाद मैंने देखा, अपोस्टल जॉन लिख रहे हैं, संत जॉन लिख रहे हैं, इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। इस भीड़ में हर जाति के, हर वंश के, हर कुल के और हर भाषा के लोग थे। वे उस सिंहासन और उस मेमने के सामने खड़े थे। वे श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके हाथों में खजूर की टहनियां ली हुई थी।
पाम ट्रीज की ब्रांचेस थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड फ्राइडे से पहले जब पाम संडे आता है तो हम वही ट्री लेके इकट्ठे होते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर के मंच के सामने, ताकत के सामने, हर भाषा, हर जुबान के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये जो हम अलग हुए थे, परमेश्वर हम सबको मिला के एक भाषा बना दी, एक राष्ट्र बना दिया। अपने चर्च में जिस भी कलीसिया में आप जाते हैं, आप जाके देखें, आसपास देखें, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग मुल्कों से आए हुए लोग उसमें इकट्ठे हुए हैं। खासकर हम लोग यहाँ जो कनाडा में रहते हैं, जब अपने चर्च में जाते हैं तो देखते हैं कोई किसी रंग का है, कोई किस रंग का है, किसकी भाषा कुछ है, किसी की भाषा कुछ है, लेकिन परमेश्वर ने हमें इकट्ठा कर दिया। हालेलुया। वो जो कर्ज या कंफ्यूजन शुरू हुआ था जब उन्होंने मीनार बनाने की कोशिश की, वो परमेश्वर ने आज खत्म कर दिया। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु का आज संदेश हमारे लिए है, अपने घमंड की, अपने पैसे की, अपनी दिमाग की मीनारें मत बनाए। ये वो मीनारें जिनको परमेश्वर नहीं पसंद करते। कोई इंसान बिजनेस में इतना अपना समय बिताता है कि हमारा बिजनेस एम्पायर बन जाए, मेरे जैसा बिजनेस ऐसा हो, मेरी जो स्टील फैक्ट्री है वैसी जैसी फैक्ट्री किसी ना किसी की ना हो। को पॉलिटिकल पावर इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं जितनी पावरफुल इंसान बनूं पॉलिटिकल लाइफ में, ऐसा कोई इंसान हो। इसी तरह कोई पढ़ाई में पीएचडी कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, ताकि मेरे पास कई लोग प्रभु के ज्ञान में पढ़ते जा रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि प्रभु के ज्ञान में पढ़े, इसलिए कि मेरे जैसा कोई भी पढ़ा लिखा ना हो प्रभु का सेवक। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज ऐसा जहाँ चर्च के बाहर हो रहा है, चर्च के अंदर भी हो रहा है। हम अपनी अपनी मीनारें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें एक ही बात की शिक्षा देता है कि वी शुड बी लॉयल एंड वी शुड बी कमिटेड। हम लोग वफादार रहें, हम लोग प्रतिबद्ध रहें। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 and 4। फिलिपियों अध्याय 2 पद 3 और 4। ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो। जो कुछ हम कर रहे हैं अहंकार में आके ईर्ष्या से, उसे मत करो। एक इंसान एक बिजनेस शुरू करता है, एक भाई बिजनेस शुरू करता है, उसका चल जाता है, दूसरा भाई भी बिजनेस करने की कोशिश करता है ईर्ष्या से जल के। प्रभु कहते हैं बल्कि नम्र बनो और तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। वैल्यू अदर्स अबव योरसेल्फ। वर्स 4। तुम में से हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखो। माय ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी चीज को हम प्राउड होके ईर्ष्या में आके शुरू करते हैं, प्रभु उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि प्रभु के वचन में बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, गॉड रेसिस्ट द प्राउड। वो जो घमंडी है, जो अपने आप को प्राउड में है, परमेश्वर उसको रेसिस्ट करते हैं। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, घमंडी लोग परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करते हैं, जैसे ये लोग कर रहे थे। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, अंत में यही कहना चाहूँगा, प्रभु कहना चाहते हैं आप सबसे कि ओनली गॉड्स प्लान विल सक्सीड। हम लोग जो मर्जी कर लें वही होगा, वही प्लान सक्सेसफुल होगा जो परमेश्वर को पसंद है, जो इनकी इच्छा के साथ मैच करता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात सीख ली है। आज बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी बात सीख ली है। आज बहुत सी कलीसिया ऐसी हैं जिन्होंने ये बात सीख ली है, इसलिए वो परमेश्वर को अपना खुदा मानते हैं, परमेश्वर के हुक्म पे चलते हैं और जो उनकी इच्छा होती है वो करते हैं, वो नहीं करते जो उनकी अपनी इच्छा है। क्यों? क्योंकि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर ने हमें एक कर दिया है। प्रभु में हम एक राष्ट्र हैं, हमारी एक ही भाषा है, हमारी एक ही डायलेक्ट है, हमारी एक ही बुक है, द होली बाइबल। आज प्रभु जी यही संदेश हमें दे रहे हैं, हम उनके जैसा ना बने बल्कि ऐसे बने जिनको देख के प्रभु को खुशी हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, आओ हमेशा की तरह खड़े होइए और प्रभु जी की जो प्रार्थना है, जो उन्होंने सानू प्रार्थना दी है, असी इस प्रार्थना के नाल अज की सभा को खत्म करिए, सभा की समाप्ति करिए। प्रभु जी ने जो प्रार्थना दी सी लॉर्ड स्पिरिट के नाल जाने, आओ मिल के प्रार्थना करिए।
हे साडे पिता ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਦੁਸਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। Once again, I bless you in the name of the Lord. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ You do not know the plans that I have made for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plan to give you a future, plans to give you hope. ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ। ਆਓ ਸਭ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। God bless you. God bless you. God bless you.